Afternoon. Let me see the name of the students. Amisha, Utkarsh, Shreya, Prachi, Aditya Kumar, Soumya Kumari, Ritvika, Ujjwal, Karishma, Rohit, Tulika, Shivam. Krishna Dayal is name of his father. Shivam, come with your name. Shambhavi, Arpita, Shambhavi, Harsh, Kanishka, Shashwat. Okay. Now, children, first of all, let me ask you one thing. That can you say the content which I'm going to write on my green board? Okay. First of all, I'm asking one question from you. That can you see if I write here law of DMU, or I should share my camera with you also so that it will be convenient for you all to see my board. एक मिनट. No. फिर मैं क्या करूंगी, चलो इसलिए ओके चलो लेट्स स्टार्ट. मैं वो चेक कर रही थी कि पता है तुम लोग को वो दिखता है कि नहीं. अगर ठीक है तो फिर वो कंटिन्यू किया जाएगा, है ना. चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अवर टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, दैट इज द नेचर एंड significance of business finance. This is our topic. Okay. Listen carefully. I'm going to clear out the meaning of all lines one by one. The first is our topic is nature and significance of business finance. It is our topic. Okay. Now, the first is the business enterprise requires capital and finance for the following purposes. Okay, for three different reasons. Listen very carefully. For three different reasons, you need capital or finance to carry out your business activity. The first is while starting a business, finance is required to procure fixed asset and also for meeting डे टू डे एक्सपेंसेस. मतलब जो हमेशा पैसा तुमको खर्च करना होगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, अपने वर्कर को सैलरी देने के लिए, वेजेस पे करने के लिए, फ्यूल खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए, ऑल दैट एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड day-to-day expenses. For this you need capital. For this you have to go to the bank to get money, or you can use your own fund. That is called the day-to-day expenses. मतलब तुम्हें इन चीजों के लिए उधार चाहिए होगा, चाहे तो तुम बैंक से लो, चाहे तो तुम अपने पैसे लगाओ, जिसको कि ओनर्स फंड कहा जाता है. ठीक है. डे टू डे के साथ साथ एक और चीज के लिए पैसे तुम्हें चाहिए होंगे. किस लिए? फिक्स्ड एसेट के लिए. फिक्स्ड एसेट इंक्लूड्स लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग, इक्विपमेंट, टूल्स और मशीनरी. वेरी इंपॉर्टेंट, मशीनरी, लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग, टूल्स, equipments all are called the fixed asset. ये fixed होता है because it works for 15 to 20 years. 15 से 20 साल तक के लिए ये काम करता है, इसे तो फिक्स्ड कहा जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you want to start your business, you have to ask for the money for these two things. What are these? For buying fixed assets, for buying raw material, for giving salaries to the worker. For this purpose, you have to ask fund from the bank. पहला चीज ये, तुम्हें इसलिए पैसों की आवश्यकता होगी. दूसरा, to meet the working capital requirement when production process is lengthy. Repeating, to meet the working capital requirement when production process is lengthy. वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट, लेकिन ये कैपिटल ही होता है. इन प्लेस ऑफ एसेट यू कैन राइट कैपिटल. ओके, इन प्लेस ऑफ एसेट यू कैन राइट कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है?
वर्किंग कैपिटल क्या है, ये तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन मैं तुमको अभी फिर से क्लास 11th में पढ़ा रही हूँ। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी बुक। हाँ बोलो। Fixed capital requirement: in order to start business, funds are required to purchase fixed asset like land and building, plant and machinery and furniture. ठीक है, इन चीजों के खर्च के लिए जो पैसा तुम खर्च करते हो, मतलब इन चीजों को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है, इन चीजों को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, नाउ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, the financial requirement of an enterprise do not end with the procurement of fixed asset। बिजनेस चलाने के लिए बच्चों, बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें दो चीज चाहिए, दो चीज चाहिए, एक रॉ मटेरियल और एक मशीन। चाहिए तो बहुत कुछ, चाहिए बहुत कुछ, बट बेसिकली यू विल हैव रॉ मटेरियल एंड मशीन। Machine is called fixed capital, raw material is a part of working capital। ठीक है, machine is called fixed asset और ये working asset, fixed capital, working capital, तो ये दोनों चीज तुम्हें चाहिए। तो बिजनेस के लिए तुम सोचोगे ना कि केवल मशीन खरीद लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल में भी पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसे साइड में मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज जिसमें आएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल्स। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल मतलब कि तुमने जहां जहां से तो तुमने अपना सामान खरीदने के लिए तुमने सामान तो खरीद लिया, तुमने पैसा नहीं दिया है, तो उसके लिए भी तुम्हें पैसा चाहिए। एंड फॉर मीटिंग करेंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, वेजेस, टैक्सेस एंड रेंट, टैक्सेस एंड रेंट, तो टैक्स का पैसा दोगे गवर्नमेंट को, रेंट का पैसा दोगे। ठीक है, जिस बिल्डिंग में तुम काम कर रहे हो वो तुमने अगर किराए पे लिया है तो तुमको पे करना पड़ेगा रेंट। ठीक है, तो टैक्स, रेंट, सैलरी, वेज, ऑल दीज आर कॉल्ड द करेंट एक्सपेंसेस एंड दीज आर द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए और तुम्हें इसके लिए पैसे चाहिए, फिक्स कैपिटल के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, मैंने इसे हटा दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, while starting a business finance is required to procure fixed assets and also for meeting day to day expenses। तुम्हें इसके लिए पैसा चाहिए। सेकेंड, काहे के लिए पैसा चाहिए, तो तुम्हें पैसा चाहिए to meet the working capital requirement when production process is lengthy, when production process is lengthy। ठीक है, to meet the working capital requirement। अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, रॉ मटेरियल मैंने लगा दिया, सामान बनने लगा, सामान बन रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस में है, ये प्रोसेस में ये अभी पूरा हुआ नहीं, जब तक ये मार्केट जाएगा, फाइनल गुड्स बन करके सेल होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स बनाने में, कंप्लीट गुड्स बनाने में, तैयार करने में कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो तुम्हें पैसे मिलेंगे बाद में, आफ्टर सेलिंग योर फाइनल प्रोडक्ट इन द मार्केट यू विल बी एबल टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द मार्केट। till then what would you do if you require more quantity of raw material? अगर तुम्हें बीच में पैसों की आवश्यकता पड़ गई तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए तो तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे, बैंक के पास जाओगे, क्योंकि अभी भी तुम्हें पैसा मिला नहीं है। पैसा मिलेगा कब, पैसा मिलेगा फाइनल गुड्स को सेल करने के बाद। तो फाइनल गुड्स बनेगा, सेल होगा, पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे पैसे चाहिए। तो वो क्या होगा, उसके पहले जब मुझे पैसे चाहिए तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा या मैं अपना कैपिटल लगाऊंगी। तो इस केस के लिए भी, वर्किंग नीड्स को पूरा करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इट मीन्स टू बाय रॉ मटेरियल, इट मीन्स टू बाय रॉ मटेरियल व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंथी, व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंथी, जब
प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिन बाद कम्युनिटी का प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट है जो एक दिन में नहीं बनता है, उसको बनने में 15-20 दिन का समय लगता है। तो भाई बीच में अगर रॉ मटेरियल खरीदना होगा तो क्या करोगे? तो करोगे क्या? पैसा मांगोगे, उधार मांगोगे, तुम्हें फाइनेंस चाहिए होगा, तुम्हें फाइनेंस चाहिए होगा, बिजनेस फाइनेंस चाहिए होगा। और इसी का ये इम्पोर्टेंस है कि अगर रॉ मटेरियल तुम्हारे पास खरीदना पड़ा तो बिजनेस फाइनेंस तुम्हें हेल्प करेगा, बैंक्स तुम्हें हेल्प करेंगे, इसीलिए बैंक्स का इम्पोर्टेंस है, बिजनेस फाइनेंस का इम्पोर्टेंस है। थर्ड एंड लास्ट, टू फाइनेंस द ग्रोथ and expansion project of the company, to finance the growth and expansion project of the सोना क्या company, पाएगा? to finance the growth and expansion project of company. It means if you want to expand your business, if you want to expand your business, if you want to grow more by increasing the scale of operation, you need money. तब तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, तुम्हें फिक्स कैपिटल खरीदना पड़ेगा, तुम्हें और मशीन खरीदना पड़ेगा, तुम्हें और जमीन खरीदना पड़ेगा, तुम्हें और कैपिटल ये तुम्हें इक्विपमेंट और खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए भी तो तुम्हें पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो फॉर दीज 3 थिंग्स यू रिक्वायर बिजनेस फाइनेंस, फॉर दीज 3 थिंग्स यू रिक्वायर बिजनेस फाइनेंस। फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, उसे एक्सपेंड करने के लिए, एक शहर में तुम्हारा कंपनी है, दूसरे शहर में कंपनी खोलना चाहते हो, उसके लिए भी तुम्हें क्या चाहिए? बिजनेस फाइनेंस चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट। हाँ, एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट। अब भाई तुम्हें तो पैसे मिल गए, मान लो कि तुम्हें पैसे मिल गए, ठीक है, तो अब तुम्हें फायदा क्या क्या होगा, क्या क्या तुम्हें बेनिफिट क्या क्या होगा, क्या क्या फायदा मिले? भाई फायदा ही फायदा एकदम। मनी है तो हनी है ना, मनी आ गया तो हनी है, मीठा मीठा सब कुछ। तो क्या क्या है इसमें? सबसे पहले, द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी ऑन टाइम, the firm can meet its liability on time. If you had taken loan from the banks, okay, if you had taken loan from the bank, or if you have to pay some money to somebody else, if you have to pay back money to somebody else, then it can be done because now you have got business finance. मतलब अगर मान लो कि तुमने किसी अपने फ्रेंड से उधार लिया है, ठीक है, उसको चुकाना है, पैसे नहीं थे लेकिन पैसे आ गए, तुमने या तो अपने पास से पैसे तुम ले आए या तुम बैंक से पैसा ले आए, तुम जहां से भी ले आए पैसा, तो अब क्या होगा? अब तुम अपने लायबिलिटी को मीट कर सकते हो, चुका सकते हो। मीट मतलब चुकाना, ठीक है, मीट मतलब मिलना नहीं, ठीक है। लायबिलिटीज कैन बी मेट, लायबिलिटी अपने उधार को चुका सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमको क्या मिल गया? एडिक्वेट फाइनेंस मिल गया, एडिक्वेट फाइनेंस मिल गया, ठीक है। और सेकेंड, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। वेरी सिंपल, इफ यू हैव गॉट adequate finance, if you have got adequate finance, you can buy fixed capital, you can buy working capital, you can grow your company, ठीक है, यू कैन एक्सपेंड योर बिजनेस प्रोजेक्ट, सब कुछ कर सकते हो। तो भाई तुम्हारा बिजनेस तो स्मूथली कंडक्ट होगा ना, बिल्कुल आराम से चलेगा। थर्ड, द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आई? यू कैन बाय न्यू मशीनरी, यू कैन कॉल एक्सपर्ट्स टू गिव द ट्रेनिंग how to use that new technology. एक्सपर्ट को बुला करके ट्रेनिंग ले सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, तो पैसे से उधार चुका सकोगे, बिजनेस को बड़ा कर सकोगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर पाओगे, तुम्हारे पास पैसे आ गए। और न्यू इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इनोवेटिव का मतलब बिल्कुल न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज, ठीक है, न्यू आइडियाज आर कॉल्ड इनोवेशन।
तो अब तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम नए आइडियाज को बिजनेस में डाल सकते हो. The firm can make use of its business opportunities. The firm can make use of its business opportunities. मतलब जितने opportunities है बिजनेस के तुम उनको यूज कर सकते हो. कुछ नया प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, दिल्ली में काम कर रहे हो, पटना में काम कर रहे हो, दिल्ली में 2 प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, पुणे में 1 प्रोजेक्ट मिल गया, मुंबई में 1 प्रोजेक्ट मिल गया, तो तुम्हारे पास पैसे हैं, यू कैन स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, न्यू प्रोजेक्ट. तुम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो. क्यों? तुम्हारे पास क्या है? पैसे हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास एडिक्वेट फाइनेंस है, तुम्हारे पास एडिक्वेट फाइनेंस है, ठीक है. नेक्स्ट है द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली. द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली. जितने भी कॉम्पिटिटर तुम्हारे साथ हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, शांभवी भी है, निशी भी है, खुशी भी है, अंशुल भी है, शिवम भी है, उत्कर्ष है, उज्जवल है, सारे लोग हैं, ठीक है. लेकिन अगर इन सबके पास पैसे हैं, चलो ठीक ठाक है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा पैसा मान लो उत्कर्ष के पास है, तो उत्कर्ष तो कंपटीशन एकदम आराम से फेस करेगा और एक्सेल करेगा. तो ही कैन फेस competition more strongly because Utkarsh has an adequate finance. ठीक है ना? So see the power of finance. See the importance of finance, that we can conduct business strongly because we have sufficient amount of money. ठीक है? चलो, the firm can replace its assets and machinery whenever necessary. Firm can replace its assets and machinery. मशीन पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, ठीक है. एसेट्स जो है बहुत पुराना हो गया, वो वैल्यू उसका घट रहा है, पैसे मेरे पास आ गए, एडिक्वेट फाइनेंस है, आई कैन बाय न्यू मशीनरी, आई कैन बाय न्यू मशीनरी, आई कैन बाय न्यू एंड मोर वैल्यूएबल एसेट्स, ठीक है. लास्ट है the firm can face recession and depression. Depression means when economic activities stand still. ठीक है, when economic activities stand still, जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में हो रहा है. पूरे वर्ल्ड में जबरदस्त अभी डिप्रेशन हुआ है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया है, सारा बैठ गया है, कहीं काम ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है. तो पूरे वर्ल्ड में अभी डिप्रेशन चल रहा है और अभी बहुत सालों तक चलने वाला है. कोरोना के कारण बहुत सारे फैक्ट्रीज क्लोज हैं, बहुत सारी कंपनी में काम हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस जो होता है फिजिकल काम में, वो वर्क फ्रॉम होम में भी उतना नहीं हो पाता है, ठीक है. तो फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल. लेकिन जिन कंपनीज के पास एडिक्वेट फाइनेंस होंगे, जिन कंपनीज के पास एडिक्वेट फाइनेंस होंगे, वो कंपनी बहुत आराम से सारे कंपटीशन को फेस करते हुए अपने आप को एक्सेल कर पाएगी. Clear? So these are the benefits of business concern. These are the benefits of business concern. If you want to take a screenshot of it, you can take it. अगर लगता है कि नहीं ये मेरे पास नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ये कंटेंट नहीं है, तुम इसका फोटो ले सकते हो, है ना. चलो पूरा कवर कीजिए ना होल. हाँ, लास्ट पॉइंट पूरे थोड़ा कैमरा को दूर ले जाइए ना मैम. ऐसे. यस मैम. ये टॉपिक देख लो इस तरह से, दिख गया? दिखा यस मैम, हो गया. यस मैम, हो चलो गया. ठीक है, चलो ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक. अब है ओनर्स फंड. ओनर्स फंड मैंने कल क्लियर किया था. देखो ये लिखा हुआ भी है मेरे पास, ये थोड़ा सा बहुत हो गया है, किचपिच हो गया है, लेकिन मैंने तुम लोग को ओनर्स फंड समझाया था, ठीक है. ऐसे मैं फिर से बता देती हूँ. ओनर्स
ओनर्स मतलब मालिक, ओनर्स, ओनर्स का, ओनर्स फंड मीन्स मेरा बिजनेस है, ठीक है, माई बिजनेस. इफ आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस, okay, then I have kept 10 crore rupees for my business. ठीक है, out of 10 crores business I have invested 8 crores for buying fixed asset, fixed capital, FC, fixed capital, for buying working capital, and rest of the 2 crores, rest of the 2 crores which I have kept safely for future needs, for future requirement, that is called 2 crore. That is called owners fund. That is called owners fund. ठीक है, out of 10 crore I have invested only 8 crores for buying fixed capital and for buying working capital or for any other economic activities for the conduction of my business. Okay, the rest of the 2 crores I have kept safely because maybe I have to use it for buying very important machinery in future. ठीक है, तो मैंने फ्यूचर में 2 करोड़ रुपए को, जो कि मेरे पैसे हैं बच्चों, मेरे पैसे, ये मेरा खुद का पैसा है, तो दिस 2 करोड़ इज कॉल्ड ओनर्स फंड, इज कॉल्ड ओनर्स फंड. लेकिन अगर मैंने 2 करोड़, अगर मैंने 2 करोड़ और 2 करोड़ और प्लस 2 करोड़ मैंने क्या किया, बैंक से ले लिया, अगर मैंने ये बैंक से ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट फंड. दिस इज कॉल्ड क्रेडिट फंड. ये क्रेडिट फंड हो गया, ये ओनर्स फंड हो गया. ठीक है, ओनर्स फंड मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव केप्ट सेफली, दैट आई हैव केप्ट aside so that it can be used in future for any emergencies. That is called owners fund. ठीक है, लेकिन मैंने अगर 2 करोड़ और पैसा उधार ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो मैंने बैंक से लिया और वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट फंड, क्रेडिट फंड हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस है कि इंटरेस्ट रेट विल नॉट बी चार्ज्ड, interest rate will not be charged because this money is mine, this money is mine, so I need not to pay interest over this money, over 2 crore. ठीक है, और दूसरी बात है ये कि जो एक्स्ट्रा 2 करोड़ मैंने बिजनेस में लगाया था बैंक से लेकर के, उस पर मुझे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, IR, इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज आई हैव टेकन द लोन, that is also called credit from the bank. So bank will take this money with some interest rate. तो यहाँ पर नहीं चुकाना पड़ता है, मेरे पैसे क्योंकि है वो, यहाँ पर चुकाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं है. ठीक है, और इन्हीं दो को बच्चों, ओनर्स फंड प्लस क्रेडिट फंड इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. देखो मैंने यहाँ पर दिखाया भी था, यहाँ पर मैंने दिखाया था, ये देखो जो कल का जो डेफिनेशन था ना, बिजनेस फाइनेंस refers to capital fund and credit fund invested in the business, invested in the business. So business finance refers to these two fund, refers to these two fund invested in business. Is that clear to all? Clear हो गया? Yes, ma'am. हाँ, तो क्लियर हो गया. अब पढ़ा जाए आगे, पढ़ा जाए आगे. क्या भाई, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड, क्या इसमें खास बात है. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ओनर्स फंड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे भी और पास कर देती हूँ, तुम लोग इसको देखो, मैंने ऐसे किया और ये, चलो अब तुम लोग देखो इसको ऐसे. ओनर्स, यहाँ देखो, ओनर्स फंड refers to the funds contributed by owners as well as accumulated profit of the company. Owners fund refers to the funds contributed by owners, जो कि 2 करोड़ मैंने रखा था ना, 2 करोड़, जो 2 करोड़ मैंने रखा था बच्चों, वो पैसा 2 करोड़ जो मैंने रखा था, प्लस एज वेल एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी को काम करने से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार काम करने से कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, तो कुछ प्रॉफिट तो मैंने शेयर होल्डर को बांट दिया और कुछ प्रॉफिट मैंने
मैंने कंपनी के पास रख दिया, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड। तो मेरा पैसा जो कि 2 करोड़ का जो मैंने एग्जांपल दिया, जो कि मेरा पैसा है, वो पैसा हो गया 2 करोड़, प्लस कंपनी को साल दर साल काम करने से बहुत फायदा हुआ। मान लो कि करीबन 11 करोड़ फायदा हुआ 5 साल में, मान लो, ठीक है। तो बार बार कैमरा हिल रहा होगा, तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि हिले नहीं। हाँ, तो ये लगातार काम करने से 5 साल 11 करोड़ का फायदा हुआ, ठीक है। तो 11 करोड़ जो कि प्रॉफिट है, वो एक्यूमुलेटेड है, जमा किया हुआ प्रॉफिट है, ठीक है। तो मेरे कंपनी का हर साल का प्रॉफिट जो कि मैंने जमा कर दिया अपने पास, एक्यूमुलेटेड है, एक्यूमुलेटेड है। एंड माई 2 करोड़ रुपीज, तो 11 करोड़ प्लस 2 करोड़, दैट इज 13 करोड़। 13 करोड़ इज कॉल्ड ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, ठीक है। मेरे घर का पैसा जो मैंने रखा था ओनर्स फंड हो गया, प्लस ओनर्स फंड वो भी है जो कि मेरी कंपनी ने प्रॉफिट के फॉर्म में अर्न किया है। दैट दीज टू फंड, एक्यूमुलेटेड फंड एंड ओनर्स फंड, accumulated profit and my personal money, these two are called owners fund. This fund remains with the company and it has no liability to return this fund. Clear? This fund remains with the company and it has no liability to return this fund. क्योंकि ये मेरा खुद का पैसा है, मेरे प्रॉफिट्स हैं, तो आई नीड नॉट टू पे इट बैक टू somebody else or to some banks. Rather, all this money are mine. सारे पैसे मेरे हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है इक्विटी शेयर्स, इसमें आते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं दोनों क्लियर करने जा रही हूँ। इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर द प्रॉफिट ऑफ ओनर्स फंड, ठीक है। चलो, अब ये टॉपिक होगा हमारा बाद का। लेट्स सी द मेन फीचर्स ऑफ ऑनर्स फंड। क्या खास बात होता है? अब अगर तुम लोग इसका मीनिंग समझ गए, ऑनर्स फंड का तुम लोग मीनिंग समझ गए अगर, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग को इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। बताओ, फ्रैंकली बताओ, हैव यू फॉलोड द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग? Yes, ma'am. बिल्कुल क्लियर। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मेन फीचर्स ऑफ ऑनर्स फंड, ठीक है। याद रखना, मैम के पास अभी 2 करोड़ हैं, मैम के पास अभी एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है वो 11 करोड़ है, तो मेरे पास 13 करोड़ है, और वो मुझे किसी को देना वना नहीं है क्योंकि वो सारा पैसा मेरा है। क्या क्या फायदा, फीचर क्या क्या इसमें है? पहला फीचर, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। Source of permanent capital. Why? Because in shortage of money, in the situation of lack of money, I have to run to the bank. I have to rush to the bank to get the help. That please help me. Please give me some loan to buy raw material or to buy fixed capital or to pay premium for the insurance in case of shortage of money. But in case of owners fund, where money always kept safely, in that situation, it becomes the source of permanent capital. मेरे पास 13 करोड़ हमेशा मेरे पास है, मेरे तिजोरी में हमेशा। तिजोरी का मतलब ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर में मैंने लॉकर में बंद कर दिया है, ऑब्वियसली मैंने बैंक में जमा कर दिया है और वो पैसा मेरा है, ठीक है। तो वो पैसा मेरे लिए परमानेंट कैपिटल हुआ कि नहीं बच्चों? जब चाहे मेरा पैसा है, मैं निकाल लूंगी, रॉ मटेरियल खरीद लूंगी, लैंड खरीदना होगा खरीद लूंगी। सो इट इज द सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. चलो, Yes, ठीक ma'am. है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, भाई क्या कहते हैं, बीच में प्रॉब्लम हो गया, एकाएक बीच में प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। देखो, द ओनर्स फंड इज ऑल्सो नोन एज रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस। द ओनर्स फंड इज ऑल्सो known as the risk capital of the business. Why? As the return on this capital depends upon the rate of earning of the company. As the return on this capital depends upon the rate of earning of the company.
जितना तुम्हारी कंपनी अर्न करती है बच्चों, तुम्हारे पास उतना ज्यादा ओनर्स फंड रहेगा, ठीक है। मोर अर्निंग ऑफ योर कंपनी will assure you the more honest fund. जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, in case company is incurring loss, then it is not compulsory to pay any return on honest fund. जैसे देखो मेरे पास 13 करोड़ है, ठीक है, मुझे बहुत फायदा हुआ, बम्पर फायदा हुआ। जब खूब मान लो कि मेडिसिन की कंपनी है तो कोरोना के टाइम में तो मेडिसिन की कंपनी को बहुत फायदा हो रहा होगा, ठीक है। या मेडिसिन की कंपनी क्या, मेडिसिन तो खैर कोरोना का तो कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर जो इसका वैक्सीन जो कंपनी जो कंट्री बनाएगा, जैसे कि अभी ऑक्सफोर्ड हाँ मास्क बनाएगा, सैनिटाइजर बनाएगा, तो उनको तो बहुत फायदा होगा ना, उनका तो ऑनर्स फंड बढ़ते जाएगा, उनका तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। तो जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा, रेट ऑफ रिटर्न मतलब फायदा, कितना पैसा तुमको वापस मिलता है, फायदा प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट तुम्हें होगा उतना ज्यादा तुम्हारा ऑनर्स फंड में बढ़ता जाएगा, पैसा बढ़ेगा ना, बोलो हाँ। Yes. बढ़ेगा कि नहीं? Yes, ma'am. बिल्कुल बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें नुकसान हो गया इन केस, तो क्या तुम्हें घबराने की फिलहाल जरूरत है? बोलो तो, क्या तुम्हें फिलहाल घबराने की जरूरत है? अरे भाई बैंक से लोन लेते लॉस होता तो घबराने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि तुम्हें वापस करना है। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें वापस नहीं ना करना है पैसा, यहाँ पे तो वापस नहीं करना है। तो कंपनी इज इनकरिंग लॉस, देन इट इज नॉट कंपल्सरी टू पे एनी रिटर्न ऑन ओनर्स फंड। If loss continues, owners may be unable to recover even their original investment. हाँ, घबराने की जरूरत तब होती है जब तुम्हारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के पैसे भी नहीं आ पाए। मतलब जो मैंने 10 करोड़ में से जो मैंने 8 करोड़ जो इन्वेस्ट किया था, उसका भी पैसा मेरे पास वापस नहीं आता है, तब लॉस का ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर मुझे पैसे मिलते जा रहे हैं और मुझे वैसा नुकसान नहीं हो रहा है कि मुझे कंपनी क्लोज करना पड़े, थोड़ा मोड़ा नुकसान हो रहा है, तो मुझे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक को मुझे पैसे वापस नहीं करने हैं, वो सारे पैसे मेरे अपने हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं? 50%। हाँ चलो ठीक है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, तो ठीक है, गुड। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। What is the meaning of this feature? No collateral is required. No collateral is required because collateral or security is required only when we go to the bank, isn't it? When we go to the bank to have credit, to get the loan, they ask collateral. They ask for collateral. But here we are not going to the bank. हम बैंक के पास थोड़ी जा रहे हैं, वो पैसा मेरे पास, मेरे घर का पैसा है ना, तो सिक्योरिटी कौन मांगेगा? मैं अपने आप से सिक्योरिटी मांगूंगी कि मैम सिक्योरिटी दीजिए, मैम सिक्योरिटी दीजिए, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। No, वही ma'am. नो सिक्योरिटी, हाँ, नो सिक्योरिटी हैज टू बी ऑफर्ड अगेंस्ट ओनरशिप कैपिटल। और लास्ट इज सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड। कहाँ से आता है? तो ओनर्स फंड कॉम्प्राइजेज ऑफ शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब मेरे पास जो 2 करोड़ रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा रखे थे साइड में सेफली कि वो फ्यूचर में काम में आ सकते हैं, उन पैसों, वो पैसा मेरे पास रखा हुआ है। और कहाँ से आएगा? रिटेन्ड अर्निंग से। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? जो मुझे 5 साल काम करते करते जो 11 करोड़ मैंने अर्न किया था, वो मेरा अर्निंग रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड मतलब रखना, रिटेन्ड मतलब रखना, जो अर्निंग मैंने रख लिया, जो अर्निंग मैंने रख लिया, ठीक है। तो दैट रिटेन्ड अर्निंग इज अ सोर्स ऑफ ओनर्स फंड, ठीक है, ठीक है। हाँ आप देखो, अगर जो लोग समझ गए they can write in their own language. Those who are not following the topic, they should learn this topic by heart, memorize this topic.
Okay, next is, let me see the वो टॉपिक मैं नेक्स्ट तुम लोग को बता सकते हैं. Time is going to be over. Today I will send this topic so that you can make the notes out of it. मैं ये आज भेज दूंगी और कल का टॉपिक होगा बच्चों ये देखो, ओनर्स फंड और बोरोड फंड. ओनर्स फंड और बोरोड फंड जो है इन दोनों के, हाँ नहीं सॉरी बोरोड फंड इज आउट ऑफ सिलेबस चिल्ड्रन. ये अरे मैं तो भूल गई थी, ये बोरोड फंड क्रॉस कर देना, वो नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है. ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है. मैंने तुम लोग को यहाँ पर दिखाया था उस दिन, ये आउट ऑफ सिलेबस है ना. बोरोड फंड नहीं पढ़ना है, टाइम भी हो गया. यहाँ देखो, ये मैंने यहाँ पे कहा बोरोड फंड नहीं आएगा. हम लोग 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, 7th चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हम लोगों को पढ़ना है अप टू ओनली आईडीआर कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो बोरोड फंड इज गिवन इन योर बुक, बट दिस ईयर दिस टॉपिक विल नॉट कम. ठीक है मैम, इन माय बुक सोर्सेस ऑफ बिजनेस इज चैप्टर 8. हाँ बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा. हो सकता है कि वो तुम्हारे, हाँ वो लास्ट ईयर का एनसीईआरटी होगा, वो लास्ट ईयर. हाँ, तो लास्ट ईयर के एनसीईआरटी में ना वो दिया हुआ है. तुम लोग यहाँ खुद देखो लास्ट ईयर का जो ये सिलेबस देखो, मैं सिलेबस शो कर रही हूँ तुम लोग को बच्चों, सिलेबस देख लो, है ना. सिलेबस में 6 चैप्टर हो गया, इसमें पार्ट बी का इतना दिया हुआ है. पार्ट बी का देखो 7 दिया सोर्सेज ऑफ बिजनेस. इसके पहले तुम लोग का दिया होगा फॉर्म्स ऑफ कंपनी. वो 7th चैप्टर होगा और ये 8th होगा. हाँ, लेकिन वो अब नहीं है बच्चों, वो हट गया इस साल ना, वो इस साल हट गया है, इसलिए उसको वो इस साल क्या, वो लास्ट ईयर भी नहीं था. ठीक है, वो एनसीईआरटी में पुराना होगा, सिलेबस पुराना लिखा हुआ होगा, वो छोड़ देना. ये तुम्हारे सामने सिलेबस है, तुम लोग इसको ले सकते हो. और देखो मार्क्स देख लो. ये फर्स्ट 2 चैप्टर 16 मार्क्स का है. फिर थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर इज ऑफ 14 मार्क्स. Third and fourth chapter, private, public and global enterprises, business, services, these 2 are of 14 marks. First 2 chapters are 16 marks. ठीक है, तो we have completed these 4 chapters. 4 क्या, ये भी हम लोग का खत्म हो गया ना. इमर्जिंग बिजनेस ऑफ